Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir.
Okay, we start. In the last class, we have discussed the eigenvalue problems. Okay, so let us start eigenvalue problems. Okay, so now you see, so we start eigenvalue problems, and the eigenvalue matrix eigenvalue problem means what? A square matrix is given. Okay, so we have to find the eigenvalues. And what is the eigenvalues? The matrix equation. This is the matrix equation. Okay, this matrix equation. This Ax is equal to lambda x. This Ax is equal to lambda x. This is the matrix equation. Okay, and here this lambda is equal to eigenvalue and x is equal to eigenvector. Okay, if x is equal to lambda x, okay, then your lambda is equal to eigenvalue and x is equal to eigenvector of lambda. Understood my point? But the question is how to find if a matrix is given. If a matrix is given, then how to find lambda, how to find x. Okay, so eigenvalue find करेंगे and eigenvector भी find करेंगे. So now you see, if ax is equal to lambda x, then we can write ax minus lambda x is equal to 0. And this 0 is what? This is a 0 vector. Okay, because this ax minus lambda x, this will be a column vector. So this is equal to 0. So here I can write, if I take x common, so I can write a minus lambda I. This I is what? This I is the identity matrix. Okay, this I is identity matrix. Identity matrix. Okay, this I is equal to identity matrix. So a minus lambda I into x is equal to 0. X is equal to 0. Okay, so here x not equal to 0. Why x not equal to 0? If x is equal to 0, then it is trivial. Trivial means obvious. Obviously, if a homogeneous system x is equal to 0 means obviously the x is equal to 0 hoga. Okay, so x not equal to, that means we have to find a non-zero vector. We have to find a non-zero vector, non-zero eigenvector. So if x not equal to 0, then a minus lambda I determinant equal to 0. A minus lambda I determinant equal to 0. Understood? So why a minus lambda I determinant equal to 0? Because if a minus lambda I, if a minus lambda I determinant, okay, is not equal to 0, is not equal to 0, then, okay, then this a minus lambda I into x is equal to 0 has a unique solution, has a unique solution. Okay, has a unique solution. And a unique solution means what? It has zero solution. It has zero solution. Zero solution. It has zero solution means this x is equal to 0. X is equal to 0. Understood my point? If a minus lambda determinant equal to 0 but not equal to 0, then it has unique solution, and unique solution means zero solution, and zero solution means x is equal to 0. And but we assuming that what? X not equal to 0. X not equal to 0. If x not equal to 0, okay, so if x not equal to 0, so we can say this a minus lambda I determinant is equal to 0. Understood my point or not? तो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so a minus lambda I determinant equal to 0. Okay, and this equation, okay, this a minus lambda I determinant equal to 0, this equation is called, so okay, if you find the determinant, if you find the determinant, okay, A is any given matrix, and if you find the determinant, then you will get a equation in terms of a lambda, in terms of a lambda, that is lambda to the power n, suppose a1 lambda to the power n minus 1, okay, a2 lambda to the power n minus 2, okay, so up to this is an, okay, which is equal to 0. That means you will get a equation by get a polynomial in terms of lambda, in terms of a lambda, and this polynomial
this polynomial is called, okay, this polynomial is called characteristic equation. Okay, this polynomial is called characteristic equation. Okay, a characteristic polynomial. Okay, characteristic equation or characteristic polynomial. So now let us see. Okay, so let us see. This is called characteristic polynomial. Characteristic polynomial. Okay, characteristic polynomial. If you solve this lambda, if you solve for lambda equation to solve, तो lambda कितना वैल्यू आएगा? वैल्यू आएगा lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n वैल्यू आएगा. ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है lambda may be distinct, हाँ, और sum of them are equal, sum of them are equal. हो सकता है. ओके, रूट फाइंड करोगे तो लैम्डा n आएगा, तो उसमें कुछ इक्वल भी हो सकता है, कुछ डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, whatever, but you will get the value of lambda, get the value of lambda. ओके, यहाँ पे A मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम्हारा n क्रॉस n होगा, n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, तो ऑब्वियसली यू विल गेट a nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल. ओके, nth डिग्री पॉलिनोमियल you will get. Okay, so now if you solve this nth degree polynomial, you will get this lambda is equal to lambda 1, lambda 2 up to lambda nth number for n number of roots you will get. Okay, for each distinct lambda, okay, so each lambda you will get an eigenvector. You will get an eigenvector. Okay, you will get an eigenvector. Now you can find what is the value of lambda. So now you find how to find the eigenvector. Eigenvalue again. This is called eigenvalues. Okay, so this is called eigenvalues. Eigenvalues. तो eigenvector कैसे find करोगे? Eigenvector कैसे find करोगे? तो eigenvector find करने के लिए to find eigenvector, okay, to find eigenvector, eigenvector corresponding to lambda, okay, corresponding to lambda is equal to lambda I. तो जितना तुम्हारा lambda आया है, जितना आइगन वैल्यू आया है, each आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर मिलेगा. तुम्हारा n आइगन वैल्यू आएगा तो n आइगन वेक्टर भी आ सकता है और उससे कम भी आ सकता है. ओके, तो if there exists n आइगन वेक्टर, then we will get less than or equal to n number of आइगन वेक्टर. Sorry. Okay, if there exists n आइगन वैल्यूज, then we will get less than n or equal to n number of eigenvectors. Okay, तो कैसे फाइंड करोगे? तो each lambda के लिए you have to find, okay, different eigenvectors. To find the eigenvectors corresponding to lambda I, okay, lambda I के लिए eigenvector find करने के लिए तो you have to solve this equation. This a minus lambda I into I whole into x is equal to 0. तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ये इक्वेशन पहले था, देखो a माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ पे जो देखो a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो लैम्बडा की जगह जब लैम्बडा आई होगा तो व्हाट विल बी द x? इफ दैट इज यू राइट a माइनस लैम्बडा आई इंटू आई होल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, तो दिस इज a system of this is a what? Homogeneous system. This is a homogeneous system. Yes or no? This is an homogeneous system. ये homogeneous system को तुम solve करोगे. Okay, now solve this system. Solve this system. Solve this system. Okay, so if you solve this system, you will get what will be the solution. What will be the solution? Okay, so what will be the solution? And solve this system, and the solution x is the eigenvector. Is the eigenvector. Okay, the solution x is the eigenvector.
So everybody understood how to find eigenvalues and eigenvectors or any doubt? Tell me. ओके तो पहले क्या करोगे, तुम्हारा ए मैट्रिक्स गिवन होगा। देखो प्रोसीजर और भी एक बार बोल दे रहा हूँ, देखो प्रोसीजर और एक बार बोल रहा हूँ। ओके प्रोसेस सर क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो मैं पहले प्रोसेस बोल देता हूँ। दिस ए मैट्रिक्स इज गिवन, दिस इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके दिस मैट्रिक्स इज गिवन, ये मैट्रिक्स गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ओके तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में a माइनस लैम्बडा आई डिटर्मिनेंट को 0 पुट करोगे, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देन सेकंड स्टेप में हाँ तुम्हारा एक लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करोगे, तो a माइनस लैम्बडा को 0 पुट करोगे तो एक इक्वेशन आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। ओके इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा में एक इक्वेशन आएगा। ओके तो यू सॉल्व दिस, यू विल गेट लैम्बडा। तो लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करोगे, सपोज लैम्बडा इज इक्वल लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ओके अप टू लैम्बडा n। this is called the eigenvalues, these are called eigenvalues। eigenvector कैसे फाइंड करोगे, फॉर ईच लैम्बडा ओके फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा आई, जितना आइगन वैल्यू होगा उतना आइगन वेक्टर फाइंड करोगे। ओके फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा आई, दिस a माइनस लैम्बडा आई okay a minus lambda I into x is equal to 0। this is the system of equation। solve this system, solve this homogeneous system। okay this is the step 4, solve this homogeneous system to find solution x। okay and this x is called okay this x is called xi, suppose you write xi, this xi is called eigenvector, eigenvector of lambda। okay and again you repeat this step। sir थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, एक बार दोबारा बोल दीजिए एक बार। और लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा आई, तुम्हारा सपोज लैम्बडा तुम्हारा वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 तीन वैल्यू आएगा, तो तुमको 3 बार करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर 3 बार फाइंड करोगे। यस सर। लैम्बडा 1 के लिए एक आइगन वेक्टर, लैम्बडा 2 के लिए एक आइगन वेक्टर, लैम्बडा 3 के लिए एक आइगन वेक्टर। प्रोसेस आर सेम, तो इसलिए मैं रिपीट लिखा हूं, ठीक है। ओके सर अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आया समझ में आया? ओके and one thing you remember, eigenvectors not equal to 0, कभी 0 नहीं आएगा, because from the starting we assume that lambda x not equal to 0, तो eigenvector never be 0। अच्छा ठीक है, तो let us solve one problem। okay let us solve। अच्छा पहले के 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, उसके बाद 3 क्रॉस 3 जाएंगे। सपोज यू राइट 3 minus 2 9 minus 6। For example, suppose a matrix is given, this is 3 minus 2 okay and 9 minus 6, 9 minus 6, this matrix is given। question is what, find all eigenvalues and eigenvectors, all eigenvalues and eigenvectors। got it? तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो फर्स्ट यू फाइंड व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके तो योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, दिस इज a माइनस लैम्बडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इज इट करेक्ट? तो a माइनस लैम्बडा डिटर्मिनेंट 0 क्या होगा, तो लिखो a क्या होगा, दिस इज 3 minus 2 9 minus 6, this is the matrix minus तुम्हारा लैम्बडा इनटू ये हो जाएगा I मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा मैट्रिक्स क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस लैम्बडा माइनस 2 9 माइनस 6 माइनस लैम्बडा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, everybody understood? Yes sir। So now you find,
तो डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट क्या होगा? दिस इज 3 माइनस लैम्बडा, ओके, इनटू -6 माइनस लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या होगा? दिस इज लैम्बडा स्क्वायर, ओके, तो माइनस plus 6 lambda minus 3 lambda, this is plus 3 lambda, okay, then minus 18 plus 18 is equal to 0. Now it is correct. देखो ठीक ठाक कैलकुलेशन में क्या हो तो 3 into minus 6 हाँ? yes sir। तो यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस टू आर कैंसल आउट। तो यहाँ पे और भी सॉल्व करोगे तो लैम्बडा इंटू दिस लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा का वैल्यू क्या आएगा? एक आएगा 0 आएगा और एक आएगा -3 आएगा। नाउ इट इज करेक्ट? यस सर। ओके, so you can say this is your eigenvalues. So you can say this eigenvalues of this A matrix are lambda is equal to 0 and a -3. So this is the eigenvalues 0 and a -3. Again you find eigenvector. तो eigenvector find करने के लिए फर्स्ट 0 के लिए लेंगे lambda is equal to 0 और lambda is equal to 0 is a minus 0i into x is equal to 0. तो a minus 0 into i, तो a minus 0i मीन तुम्हारा जो a जो इक्वेशन आया है a minus lambda i, ये वाला इक्वेशन, तो a इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये तो a minus lambda i है ना, तो लैम्बडा की जगह 0 पुट कर दो। तो लैम्बडा की जगह 0 पुट करने से क्या होगा? सेम रहेगा 3 minus 2 9 minus 6। इज इट करेक्ट? लैम्बडा की जगह 0 पुट कर दो तो ये रहेगा 3 minus 2 9 minus 6, ओके, दिस into x1 x2 that is x is equal to 0 0. Is it correct? यस सर। तो उसको तुम सॉल्व करो। इसमें दो इक्वेशन आ जाएगा। दो इक्वेशन क्या होगा? एक आएगा 3x1 minus 2x2 is equal to 0 और एक आएगा 9x1 minus 6x2 is equal to 0। तो दोनों इक्वेशन को तुम कंबाइन कर दोगे तो एक ही इक्वेशन आएगा 3x1 minus 2x2 is equal to 0 because both the equations are constant multiplication. Is it correct? Yes or no? यस सर। देखो तुम्हारा जो सेकंड इक्वेशन है 9x1 minus 6x2, इसमें 3 कॉमन ले जाओ। 3 कॉमन लेने से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो दिस इज ट्रू और व्हाट? वन इज कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनदर। यस और नो? तो तुम्हारा एक ही इक्वेशन आएगा 3x1 minus 2x2 is equal to 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ दिस x1 is equal to 2/3x2। इज इट करेक्ट? यस सर। ओके, तो देखोगे मैं और एक चीज बोल दे रहा हूं, जब भी तुम आइगन वेक्टर फाइंड करोगे और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। कभी यूनिक सॉल्यूशन, ऑलवेज इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा। भाई देखो यहाँ पे देखो x1 इज इक्वल 2/3x2, तुम x2 का वैल्यू जितना चेंज करोगे x1 भी उतना चेंज होगा, तो दैट इज इनफिनिट सॉल्यूशन। ओके, तो तुम आइगन वेक्टर जब फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा, इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा, डेफिनेटली इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा। ओके, जो इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा तो फ्रॉम दैट इनफिनिट सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड द बेसिस। बेसिस फाइंड करोगे तो बेसिस कैसे फाइंड करोगे, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? देखो सपोज मैं लिख रहा हूं x1 मींस दिस इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दिस x1 इज इक्वल टू मैं क्या लिखा था? x1 एंड x2 लिखा था। यस और नो? इज इट करेक्ट? यस। तो व्हिच इज इक्वल टू, देखो तुम्हारे यहाँ पे जो आया है जो सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू 2/3x2, तो x1 के जगह तुम ये वाला डाल दो 2/3x2 एंड x2 को रखो as it is। again you can write taking x2 common, so you will write this is 2/3 and 1।
तो अगेन यू कैन राइट, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देने से ये हो जाएगा 2,3, सॉरी 2 and 3। नाउ इट इज करेक्ट। मैं बोला था आइगन वेक्टर जैसे बेसिस टाइम में जैसे फाइंड किए थे, उसको जो रैशनल होगा तो उसको इंटीजर कर दोगे। यहाँ पे से 2/3 था इसलिए मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 and 3 आया। ओनली वेक्टर यू हैव टू राइट, जो भी कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको तुम ओमिट कर दोगे। जैसे मैं x2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, मैं x2 को ओमिट किया, ओनली वेक्टर आई हैव टू राइट, ओनली वेक्टर यू हैव टू राइट। तो मैं यहाँ पे 2 and 3 रखा हूं, तो x1 is equal to 2 and 3। अंडरस्टूड और नॉट हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर? यस सर। तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर मतलब क्या है? आइगन वेक्टर मीन जैसे द बेसिस ऑफ अ सॉल्यूशन स्पेस। तुम्हारा जो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें जो सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो वो वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या है? दैट मींस इन आवर लैंग्वेज वी कैन से दिस इज द बेसिस ऑफ अ सॉल्यूशन स्पेस। तो जितना सॉल्यूशन आएगा उसमें जो बेसिस सॉल्यूशन होगा दैट वी हैव टू राइट, एंड दैट बेसिस सॉल्यूशन इज 2 and 3। ओके, तो दिस x1 is equal to 2 and 3। सर हाँ सर, जैसे इस क्वेश्चन में x1 का वैल्यू x2 के टर्म्स में है। हाँ, तुम x2 के वैल्यू x1 के टर्म भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर डायरेक्ट अगर x1 x2 आ जाएगा तो इतना करने का जरूरत नहीं है ना? क्या क्या? अगर डायरेक्ट x1 x2 आ जाएगा तो इतना करने का जरूरत नहीं है ना? जैसे इसमें तो x1 x2 के टर्म्स में है तो इतना किए ना। ऑब्वियसली आएगा। तुम देखो जब आइगन वेक्टर फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा x वेरिएबल और एक वेरिएबल के टर्म्स में आएगा। तुम कभी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो 0 सॉल्यूशन मिलेगा, एंड x नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, बिकॉज हम थ्योरी में पहले से बोले हैं x नॉट इक्वल टू 0। हाँ सर। तो यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। ऑलवेज यू डू लाइक दिस, एनी some okay variables are what in terms of another variable। okay, जैसे मैं यहाँ पे x in terms of x2 इस टाइप का आएगा। ठीक है, ठीक है। okay, so let us come to another eigen vector for lambda is equal to minus। और ये बेसिस पे बना ना जो 2 और 3। हाँ, तुम ऐसे लिखोगे, मैं जैसे लिखा हूँ यहाँ पे देखो x1 is equal to x1 x2। तुम x1 का वैल्यू जो भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, x1 is equal to 2/3 x2, तो x1 की जगह 2/x3 x2 एंड x2 as it is। तो x2 को कॉमन ले जाओगे तो 2/3 1 रहेगा, एंड फ्रैक्शन कभी नहीं रखोगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 2 and 3 आएगा। ओके, कभी फ्रैक्शन नहीं रखो, ऑलवेज इंटीजर में लिखोगे। ठीक है, ओके, जो आएगा उसी हिसाब से लिखोगे। ओके, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3, लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए क्या होगा? a माइनस ऑफ 3i इंटू x इज इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह -3 पुट करूंगा। तुम देखो, तो लैम्डा की जगह -3 पुट करूंगा तो यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन में देखो लैम्डा की जगह -3 पुट होगा ये वाला इक्वेशन में। तो -3 पुट करने से क्या होगा? ये हो जाएगा +6 -2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3 होने से -3। ओके, तो ये हो जाएगा 6 -2। ओके, 6 -2 9 -3। इज इट करेक्ट? यस। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करो। ओके, तो 2/2 है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। तुम गॉस एलिमिनेशन में अप्लाई करो, रो ऑपरेशन में अप्लाई कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। 3x3 4x4 आएगा तो तुमको एलिमिनेशन अप्लाई, रो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ओके, व्हाटएवर, बट दिस इज अप टू यू। ओके, एनी हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 6x1 minus 2x2 is equal to 0 and ये आएगा 9x1 minus 3x2 is equal to 0। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। देखो, वन इज कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वन अदर, तुम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वेशन सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं रहेगा
3x1 minus x2 is equal to 0. Now it is correct. ये दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन आएगा बिकॉज दिस टू इक्वेशंस आर डिपेंडेंट. Yes or no? Is it correct? Yes. Yes sir. ओके बिकॉज तुम एक क्वेश्चन से हाफ मल्टीप्लाई करो, एक क्वेश्चन से 1/3 मल्टीप्लाई करो, देखो एक ही इक्वेशन आएगा. ओके तो ये इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं दिस x2 इज इक्वल टू 3x1. इट इज करेक्ट. इट इज करेक्ट. x2 is equal to 3x1. Yes, sir. Okay, so let us come find the another vector x2. This x2 is equal to that is x1 x2. तो x1 को रखो, x2 की जगह 3x1 पुट करो और यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये x1 को बाहर ले जाओगे तो तुम्हारा वेक्टर आ जाएगा 1 and 3. तो दिस इज इक्वल टू 1. ओके 1 3. ओके 1 and 3. So this is the another eigenvector. Understood? Yes, sir. Okay, so this is the process to find the eigenvalues and eigenvectors. Okay, let us complete 3x3 matrix. तो लगे 3x3 matrix solve करते हैं. Okay, देखते हैं क्या eigenvector आएगा. Another example you take. Suppose you write 4 2 minus 2, 4 2 minus 2. This is a matrix. Okay. Then 2 5 0 2 5 0. Then minus 2 0 3 minus 2 0 3. So this is the matrix. So first you have to find Yaros's equation, that is a minus lambda I determinant is equal to 0. तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो. देखो a माइनस लैम्बडा आई करोगे तो तुम्हारा जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस होगा, बाकी एलिमेंट तो सेम रहेगा. तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ 4 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 2. ओनली डायगोनल एलिमेंट में लैम्बडा माइनस होगा. 2 5 माइनस लैम्बडा 0 minus 2 0 3 minus lambda. This determinant is equal to 0. Understood? Is it correct? तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो. देखो डिटरमिनेंट फाइंड. सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए. हाँ ये वाला क्वेश्चन है. ये 4 2 minus 2 2 5 0 minus 2 0 3. yes sir, हो गया. Okay. So now here you see. तो अभी डिटरमिनेंट फाइंड करो. तो डिटरमिनेंट देखो जैसे तुम फॉर्मूला है उसे फाइंड करो. 4 माइनस लैम्बडा इनटू दिस इज 5 माइनस लैम्बडा इनटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस 0. ओके देन तो माइनस 2 इनटू ओके माइनस 2 इनटू यह आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस लैम्बडा. ओके माइनस 0 देन प्लस सॉरी ये माइनस आ जाएगा प्लस में माइनस माइनस 2 इंटू तो ये आ जाएगा 0 माइनस प्लस 2 इंटू 5 माइनस लैम्बडा. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? तो नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसे तुम फाइंड किए हो करते हो ऐसे फाइंड किया हूं मैं. एवरीबॉडी गॉट इट? इज इट करेक्ट? Yes, sir. हाँ. तो व्हिच इंप्लाइज तो देखो उसको थोड़ा सिंपलीफाई करो. ये क्या होगा 4 माइनस लैम्बडा सबको मल्टीप्लाई करके उसको सिंपलीफाई कर दो. तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा प्लस 15 और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस लैम्बडा और ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0. ओके
तो अगेन यू सिंप्लीफाई, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 32 लैम्बडा, देन प्लस 15 into 4, this is 60, then minus lambda cube, okay, plus 8 lambda square, then plus 15 lambda, okay, और ये यहाँ पे आ जाएगा minus 12 plus 4 lambda और minus 20 plus 4 lambda is equal to 0, okay, हाँ, तो -15 लैम्बडा होगा ये यस सॉरी, हाँ ये यू आर राइट यस -15 लैम्बडा, नाउ इट इज करेक्ट, अभी करेक्ट हुआ तो हाँ, तो दैट इम्प्लाइज, तो अभी क्या होगा, ये माइनस लैम्बडा क्यू हो जाएगा 8 lambda square 4 lambda square plus 12 lambda square, okay, minus 32 minus 15 minus 47 minus 47 plus 4 minus 43 plus 4 minus 39 lambda and then constant term के 60 minus 12 minus 20, तो 60 minus 20 ये हो जाएगा 40 minus 12 हो जाएगा 28, तो plus 28 is equal to 0, तो now it is correct, यस सर। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले जाओ, माइनस कॉमन लेने से लैम्बडा क्यू माइनस 12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 39 लैम्बडा माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके, नाउ सॉल्व इट, ओके, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, आइदर यू कैन सॉल्व बाय कैलकुलेटर और यू नो व्हाटएवर यू मेथड यू नो, ओके, बट यू हैव टू सॉल्व दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैलकुलेटर में भी अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल तक सॉल्व हो सकता है, ओके, बट डिपेंड करता है कौन सा कैलकुलेटर है, एंड आई होप यू नो दिस थिंग्स, तो तुम सॉल्व करो, पहले बोलो लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, अच्छा अच्छा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन होगा ना, यस सर, ओके, बिकॉज 1 क्यू माइनस 12, 1 की मतलब 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 39 प्लस 1 40, 28 माइनस 12 40, तो 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे कर सकते हो, दिस इज 1 माइनस 12 39 माइनस 28, ओके, ये एक फॉर्मूला होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा, तो दिस इज 1 इंटू 1 ऐड करो, ऐड करने से -11 ये हो जाएगा, अगेन -11 उसको ऐड करो, क्या होगा 28, अगेन 28 ये 0 आएगा, तो तुम्हारा ये आएगा सर लैम्बडा इक्वल्स टू 4 और 7 आएगा, हाँ, तो लैम्बडा -1 कॉमन एक फैक्टर आएगा, तो ये रहेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 11 लैम्बडा, ये हो जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ओके, तो अगेन 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, लैम्बडा ये किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, लैम्बडा 4 के लिए सेटिस्फाई करेगा, 16 प्लस 28 माइनस, ओके, 4 के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो 4 करने से यहाँ पे 0 आएगा, तो 1 4 इंटू 1 4, तो -11 प्लस 4 -7, देन दिस इज -28 इज इक्वल टू 0, तो एक आएगा, दिस दैट इंप्लाइज दिस इज लैम्बडा -1 लैम्बडा -4 इंटू लैम्बडा -7, अंडरस्टूड, तो तुम्हारा लैम्बडा का वैल्यू होगा 147, इज इट करेक्ट,
यस Okay. So lambda is equal to 1, 4, 7. So let us find the eigenvector for lambda is equal to 1. For lambda is equal to 1. So lambda is equal to 1 के लिए क्या होगा? देखो तुम्हारा क्वेश्चन जो था उसमें a माइनस लैम्बडा आई इंटू x इज इक्वल टू 0. तो लैम्बडा की जगह 1 पुट करके वो मैट्रिक्स लिखो. मैट्रिक्स क्या होगा? मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट. देखो p2 माइनस 2 2 4 0 और एक आएगा -2 0 2 -2 0 2. दिस into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Got it? तो अभी क्या करोगे? अभी तो ये जो मैट्रिक्स है एक 3x3 है तो 3x3 इक्वेशन आ जाएगा तो तुमको सॉल्व करने में डिफिकल्ट होगा. तो बेटर यू अप्लाई द रो ऑपरेशन. ओके तुम रो ऑपरेशन करोगे. देखो 3 2 -2 हो जाएगा तो तुम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके अदरवाइज यू अप्लाई द रो ऑपरेशन. 2 4 0 दिस मैट्रिक्स ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 -2. इसको 0 पुट करोगे तो दिस R2 इज रिप्लेस्ड बाय 3R2 -2 R1. तो ये हो जाएगा 0. तो ये हो जाएगा 12 -4 दैट इज 8. ये 0 minus of -2 into -2 that is 4. Again R3 के लिए रिप्लेस करो. दिस इज 3R3 प्लस 2R1 प्लस कर दो. ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा 6 -4 ये 2 हो जाएगा. तो दिस मैट्रिक्स विल कम. तो अगेन इसको 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 -2 0 8 4. ये हो जाएगा 0 0 0. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे तुम ऑपरेशन करोगे R3 इज रिप्लेस्ड बाय ओके 2R3 -R2 2R3 -R2. ओके ओके 2R3 -R2. तो देखो पूरा एक रो 0 हो जाएगा. तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा? ये आ जाएगा 3x1 प्लस 2x2 -2x3 इज इक्वल टू 0 और ये क्या आएगा 8x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन यू कैन राइट दिस x3 इज इक्वल टू -2x2. तो x3 को x2 में लिखे हो तो x1 को भी x2 के फॉर्म में लिखो. तो x1 क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा यहाँ पे 3x1 इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 2x3 -2x2 एंड व्हिच इज इक्वल टू एंड 2x3 का वैल्यू -2x2. तो दिस इज -4x2 -2x2 व्हिच इज इक्वल टू -6x2. ओके तो तुम्हारा x3 का वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा 2x2. ओके तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है जो आइगन वेक्टर आएगा x1 आएगा ये होगा तुम्हारा x1 x2 x3. तुम्हारा x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू क्या है? सर ये x2 जो लिखे हैं सर वो -4x2 -2x2 लिखा है. हाँ तो अभी हाँ व्हाट ये -4x2 -2x2 लिखे हैं ना. हाँ ये -6x2 होगा. -6 में -2x2 होगा. नाउ इट इज करेक्ट. हाँ सर. हाँ यस यू आर राइट. -2x2 आएगा. तो x1 की जगह -2x2 रखोगे. x2 को ऐसे रखोगे बिकॉज x2 का टर्म में लिखे हैं तो x2 रहेगा एंड x3 की जगह -2x2 रखोगे. तो अभी क्या करोगे? x2 को कॉमन ले जाओगे तो यहाँ पे आएगा -2 1 माइनस. सर वो 3 होगा ना मतलब 3x2 होगा x1 इज इक्वल टू. हाँ बोलो.
सर वो 3 होगा ना, 4x2 minus 2x2 तो 2x2, तो 2x2 is equal to minus 6. समझा नहीं, बोलो। तुम्हारे यहाँ पे x1 का वैल्यू -2x2 ठीक है? तो सर वही बोलो, वो -3 होगा ना, -3x2 होगा। तो एक बार चेक कीजिए। अच्छा देखते हैं, और एक बार चेक कर देते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट चेक कर देते हैं। 3x1 plus 2x2 minus 2x3 is equal to 0। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3x1 is equal to 2x3 minus 2x2 एंड x3 का वैल्यू क्या है? -2x2। ठीक है सर, ठीक है, -2x2। ठीक है, तो यस ओके। तो तुम्हारे यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा -2 1 -2, ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर -2 1 -2। अंडरस्टूड? यस। ओके, तो सिमिलरली यू फाइंड लैम्बडा इज इक्वल टू 4। ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू 4 के लिए फाइंड करो। देखो दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, आइगन वेक्टर फाइंड करोगे तो एवरी स्टेप में इसे करना पड़ेगा, ठीक है? तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4 फाइंड करोगे तो तुम्हारा मैट्रिक्स क्या आएगा? a माइनस लैम्बडा i इंटू x इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा यहाँ पे लैम्बडा 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, 2 माइनस 2, देन हो जाएगा 2 1 0, देन -2 0 -1। सर दिस यस सर, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, लेंदी होगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करोगे तो पूरा लेंदी होगा। तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज 12 मार्क्स। ओके, ऑनलाइन एग्जाम। हाँ कितने मार्क्स का बोलो? सर 12 मार्क्स? हाँ, तुम्हारा एंड सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क्स है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क्स है। तो तुम्हारा ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का प्रॉब्लम आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा और बीट नहीं आएगा, ठीक है? बिकॉज़ पूरा पैटर्न कैसा होता है इसमें? हाँ पर पैटर्न कैसा होता है, मतलब एमसीक्यू कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा? एमसीक्यू तुम्हारा 7 एमसीक्यू आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा 4 आएगा। 4 से 3 करोगे तो 3 करने से 12 into 3 36 प्लस 7 into 2 14 हो गया 50। ओके सर। ओके सर। ओके, तो नाउ यू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने से देखो ये हो पाएगा सॉल्व। देखो तुम गॉस एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हो, इजी होगा। सॉरी, रो ऑपरेशन अप्लाई करने से इजी होगा। देखो तो बेटर यू डू दिस 0 2 -2 2 1 0 -2 0 -1। ओके, तो एक काम करो, रो इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा रो 2 और रो 1 को रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2 1 0, देन 0 2 -2 -2 0 -1। ओके, तो ऑपरेशन करो तो 2 1 0, ये तो 0 ऑलरेडी है, इसको 0 पुट करने से तुमको सिर्फ R3 प्लस R1 करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 0 1, ये -1। नाउ इट इज करेक्ट। अगेन यू 2 1 0 0 2 -2 और लास्ट रो को तुम पुट करोगे तो क्या पुट करोगे? दिस R3 इज रिप्लेस्ड बाय 2R3 -R2। तो देखो तीनों 0 हो जाएगा। देखो ऑब्वियसली तुम देखोगे, तुम गॉस एलिमिनेशन रो ऑपरेशन अप्लाई करो, ऑब्वियसली एक रो पूरा 0 आएगा। ओके, हो गया तुम्हारा। तो अभी इक्वेशन लिखो 2x1 plus x2 is equal to 0 और 2x2 minus 2x3 is equal to 0. So from the second equation you will get this x2 is equal to x3. Okay, or from the first equation you will get x2 is equal to minus 2x1. Okay, तो अच्छा मैं x1 का टर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो x2 is equal to x3, या दिस इज ऑल्सो minus 2x1। ठीक है, तो तुम्हारा मैं x2 और x3 को दोनों को x1 के फॉर्म में लिखा हूं। तो मेरा आइगन वेक्टर क्या होगा? दैट इज x1 x2 x3 एंड x1 का वैल्यू रहेगा, x2 का हो जाएगा -2x1 एंड x3 ऑल्सो -2x1।
and if you take x1 common, then this is 1 minus 2 minus 2, so your eigenvector will be 1 minus 2 minus 2. Is it correct? Got it? Yes. वेरी सिंपल. देखो ये इसमें बहुत सिंपल होगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, तुम सिर्फ प्रोसीजर याद रखोगे तो फटाफट करोगे, इतना भी टाइम नहीं लगेगा. सर यहाँ पे x1 के टर्म्स में ना लेके x2 के टर्म्स में लिखने से होता है? यस यस यस, तुम्हारा वेक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके ओके, तुम्हारा जो आइगन वेक्टर x1 x2 x3 आएगा वो यूनिक नहीं है. तुम एक पाओगे और कोई और किसी का वेरिएबल में लिखोगा तो और उसका डिफरेंट आएगा. ओके ओके, तो नेक्स्ट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 7 के लिए. तो लैम्बडा इज इक्वल टू 7 के लिए फाइंड करो a माइनस लैम्बडा i x इज इक्वल टू 0. तो लैम्बडा का वैल्यू 7 पुट करो तो 4 माइनस 7 माइनस 3 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, और ये हो जाएगा माइनस 2 0 माइनस 2 0, 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4. दिस into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Okay, so now you solve it. Okay, so same रो ऑपरेशन अप्लाई करो. 3 2 minus 2 2 minus 2 0 minus 2 0 minus 4. ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इज माइनस 3 2 माइनस 2. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा रो 2 में हो जाएगा दिस इज 3 रो 2 प्लस 2 r1. तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, एंड ये हो जाएगा माइनस 4, और r3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 3r3 माइनस 2r1. तो दिस इज 0, और ये हो जाएगा माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस 8. तो और एक बार करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0 0 0. ओके, ऑब्वियसली बिकॉज देखो माइनस 2 माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r3 को लिखो तो r3 माइनस 2r2, ऑटोमेटिकली देखो सब 0 हो जाएगा. तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा, माइनस 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन आएगा माइनस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0. ओके, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से तुम x2 लिखो. x2 इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा माइनस 2x3. Is it correct? Yes sir. Okay, तो इक्वेशन 1 में तुम पुट कर दो 3x1, 2x2 के जगह क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4x3. ओके, x2 के जगह में माइनस 2x3 पुट कर दिया, देन माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 3x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x3, एंड x1 इज इक्वल टू माइनस 2x3. Is it correct? x2 is equal to minus 2x3, x1 is equal to minus 2x3. तो यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन क्या आएगा, x3 is equal to this is x1 x2 x3, x1 is equal to minus 2x3, x2 is equal to minus 2x3, and x3 as it is, and if you take x3 common, then this is minus 2 minus 2. Is it correct? Yes sir. तो प्रोसेस इज सेम. ओके, देखो आइगन वेक्टर तुम्हारा जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना लेंथी होगा, बिकॉज एवरी आइगन वैल्यू के लिए तुमको आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. ओके, अनदर थिंग इज तुमने जितना डिफरेंट आइगन वैल्यू आया, सपोज मेरा यहाँ पे तो तुम्हारा जो आइगन वैल्यू आया है क्या आया है 1 4 7, तो ऑल आर डिफरेंट.
तो ऑल आर डिफरेंट होने से तुमको डिफरेंट मतलब 3 स्टेप करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा आइगन वेक्टर, 3 आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। ओके, रिपीट आइगन वैल्यू होगा तो एक बार होगा, जितना बार रिपीट होगा उतना अच्छा है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? आइगन वैल्यू आएगा 1 1 4, तो 1 1 2 बार आया है तो आइगन वेक्टर तो एक बार फाइंड करोगे, 2 बार तो नहीं फाइंड करोगे, सेम आएगा। ठीक है, रिपीट होगा तो तुम्हारा स्टेप कम हो जाएगा, और डिफरेंट आएगा तो उतना तक फाइंड करोगे। एवरी आइगन वेक्टर यू हैव टू फाइंड। अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, sir. So in this way you can find eigenvalues and eigenvectors. Okay, तो वेक्टर you should practice because eigenvalue eigenvector तो हो गया, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी ट्रिक्स है। ओके, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थ्योरम्स है। तो पहले तुम इसको सॉल्व करो। तुम्हारा जो प्रॉब्लम सेट 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 यू शुड प्रैक्टिस 1 to 16। ओके, 2x2 और 3x3 और 4x4 सब टाइप का मैट्रिक्स है। ओके, तो यू शुड प्रैक्टिस द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो एटलीस्ट यू प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल तो नहीं है क्लास, वेडनेसडे, तो तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो 1 to 16। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल। You write the roll number in the chat box. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you all.